Hi guys, good morning. Good morning everyone. Thank you. Thank you for joining. Good morning, sir. Good morning. Morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning everyone. Good morning, So sir. guys, we have today Aniket who is presenting his automobile report. So Aniket, you ready with the report? Yeah, Would you sir. like? Okay. Would you like to share your screen? Or shall I Yeah, share? sir, sure. Okay, you can share your screen. 2 minutes, huh? Not more than that. Okay. Aniket, you can share your screen. Yeah, sir, is my screen visible? Yeah, it's screen is visible. Yes. Acha, so Aniket, have you prepared a note for that? For your understanding? Hello. Hello. Have you prepared a pitch for your own self, Aniket? Acha, Yeah, which sir, came? I'll go through it. You have it. Acha, okay. Now, have you written it anywhere, or you just want to say as going to I'll the? follow from these slides only, sir. Acha, okay, fine. Go ahead. Okay. Yeah. So, good morning, everyone. I'll present the December monthly updates for the automobile sector. So, on a broad basis, like the December volumes grew around 30, almost 31%, and on a domestic sales increase 33%. If we see on the volume front, it was around 18.7, 1.8 million on a volume basis, and mostly contributed by the two-wheeler because of the rural recovery and the SUV led volume on the PV segment and the supported infra growth which is happening on the CB segment. So broadly, I'll go through the four-wheeler segment. The volumes increased almost 374,000 to, and on a percentage basis, we see a 18% growth on a Y2Y basis. And major contributor were Maruti Suzuki, which almost contributed one third to the sector. And if we come to the CB segment, it grew almost 23% on a Y2Y basis. And Tata Motors was the major contributor, almost contributed 7,000 on a domestic sales. And on a percentage basis, this segment grew around 23%. Three-wheeler segment has a very low base, so we see a very high percentage, and the base was around grew to 27,000, and this contributor to the segment was the TVS Motors, almost contributed 10,000 vehicles on both ICE and the electric segment. And the main reason was due to the like the mobility which is increasing and the e-commerce segment, which is contributing a lot to this three-wheeler growth. And two-wheeler, coming down to the two-wheeler grew around 35% on a Y2Y basis, and the volumes were around 1.3 million. TVS again was the major contributor on both the scooters and the motorcycles, along with Hero. So coming down to specific, like on four-wheeler segment, what all contributed? So major contributors were the hatchback and sedan and SUV. Hatchback almost, like this SUV almost contributed 52% of the total sales, and coming down with a 40%, 46% on hatchback, and a very low base of 2% on sedan. And the exports, we see a decline this month, and the major reasons I researched, so like the shipment delays, like uh, mostly countries in the abroad follow Jan to December month, and in the December month their exports, like their budgets are exhausted, so their exports volumes decline. So our companies delayed the shipments because of the that low volume. And also, like our major exporter market was Mexico, which was contributing a one third exportment shipments to of the country. And in the recent past, they increased the tariff on our exports. So this mobilized and this you can say impacted our exports front on the four-wheeler segment. CV segment grew on a 23%, and this was mainly by the you can say the mining activity which increased in the recent past. The steel prices, we are showing a hike,
and the NHEI and the construction activity, which are booming. And on the exports front, CV almost grew 40%, and the markets were Africa, Middle East, and the emerging countries. So coming down to the companies which all grew, so Maruti Suzuki, like it's a market leader, and volume standing around 189,000, 36% increase on a Y2Y basis. And the models which contributed were Brezza, Fronx, Grand Vitara, because there is an SUV trend which is going on, along with the hatchback segments like the Swift, Desire, and the Wagoner. The Swift Desire also, we can link this to the tourism sector, like as we discussed, like this is the major contributor in the mobility of the in the tourism. And on the exports front, passenger vehicle declined as we discussed the reasons. And their major markets for this exports front are Africa and the Latin America. On the CV segment, it has a very low base, so we see a good CAGR of 46% YOY. And the reasons were very like there is a rise in the medium to small enterprises and the last mobility and the logistics demand. Tata Motors, like the PV segment grew on a 24% on a Y2Y basis. And but there was a very like it didn't grew on a good you can say didn't beated the industry standards. And the major contributors for this were Punch and Nexon along with Tiago. On the exports front, it has a very like a triple digit base, so a 700% increase on a Y2Y basis. And on the CV segment also, like we see a 24% increase to almost 40,000 units. Coming down to M&M, Mahindra and Mahindra, the PV segment show a very robust momentum this month, and the volume stood at 50,000, uh, growing at a 24% CAGR. And their flagship models which contributed was Scorpio, Scorpio N, XUV 700, Bolero, and Thar. And on the CV segment, the volumes were standing at 24,000, increase of 27% on both the light commercial vehicle and the intermediate commercial vehicles. On the three-wheelers, like it has a very low base, like hardly any sales comes. So almost 8,000 vehicles sold and a 31% increase. Coming down to Hyundai, Hyundai lagged their sales this month on a muted basis, like almost contributed on a volume basis 42,000 units and a 0.5% increase on a Y2Y basis. And the major reasons were like their hatchback segment didn't contributed anything, and competitive prices, and a major shift from sedan to a SUV segment. And they have very low units on SUV on a you can say on a 15 to 25 scale level lakhs. On the export front, drastically we see a good, like a strong performance, and it beated the industry average. It grew around 27%. And I researched and I got to know like they are exporting, they are making majority of the vehicles in Make in India, because like they are getting a you can say a very cheap labor and a good technology, and they're exporting these vehicles to the emerging countries, and that's why we see the spike. Coming down to the two-wheeler segment. Okay, that is fine. Aniket, two-wheeler, okay. What feedback I wanted to give is good. Good. You have presented it very well. Expect, you have, let's say you have taken 10 minutes, but that's fine. I was expecting industry to be in 2 minutes and the next 2 minutes. So Okay. let's say industry 2 minutes, your passenger vehicles 2 minutes, and your two-wheelers 2 minutes. Okay, this is how it goes. I will tell you one second. I will just stop your screen. If I want to present this, how will I present this? Okay, I have your report. Okay, now what is the purpose? When I said not 2 minutes, it doesn't actually means 2 minutes. It is like I will get bored in 2 minutes. This is the concept.
Whenever someone says now that I tell me something in 2 minutes, it is where he wants to understand whether you can excite me to listen more on you. Now when you were saying why was there and बहुत बार आया, तो ये थोड़ा प्रेजेंटेशन प्रॉब्लम है. इसके लिए ना विद्या मैम के सामने पहले प्रेजेंट करो, वो शी विल टेल यू कि ये बार बार नहीं आना चाहिए. And okay. Now when you start with the industry, you are perfectly fine. You start with 4-wheelers, CV segment, 3-wheelers, 2-wheelers. Acha, now what is the problem over here? Not in the presentation, but in the format. Let us say तुमने बोला auto demand, okay, automobile, auto demand momentum builds, December volumes up 30%. So this can be, said it in one line specifically that auto industry grew 30.5% led by two-wheeler and four-wheeler growth. Okay. Majorly led by, because obviously we know that two-wheeler contributes the highest section, highest amount to the industry. So, we have said over 71%, led by majorly two-wheelers. Okay. Or you can say, okay, domestic sales, majorly, if you say domestic sales, industry grew majorly because of the increase in domestic rate. So in domestic, what led? Two-wheeler was the highest performer, was the largest performer. Okay. तो ये एक ही सेंड में आना चाहिए. Okay. Or you can say if there was some industry specific news, okay, GST led growth, GST cut led to a substantial growth in the automobile industry led by two-wheeler segment, which was up 34.7%. Okay, you can also say that. Because I want कि ये महीने में क्या हुआ है. When you say 30%, 30.5% growth है, तो I assume कि पूरा auto industry में grow हुआ है. If पूरे auto industry में grow हुआ है, then what exactly have increased in auto? What is the reason of increasing? Is there any one reason? या फिर you can also say, let's say पूरा auto industry down था, but two-wheeler ही ऊपर था. You can mention that, what was the reason for overall two-wheeler being improved. So it can also be company specific. मतलब अगर मैं बोलूँ मारुति के small hatchback के वजह से segment grow हुआ है, you can small car sales lift the segments to 30% growth. ऐसा भी तुम बोल सकते हो. Okay. It's up to you. So one heading is important, that what you write in the heading. Total sales. So now when you say total sales, you have to give a disclosure that total sales, when you go for interview, this is not the industry sale. This is only, or you can write a note down here. Numbers are only about the listed companies. Whereas which Tata Motors, Mahindra, Hyundai, Maruti, Bajaj Auto, Hero, TVS. Okay. You have to give a disclosure here down. That this numbers, all numbers is not industry numbers, because you are not taking industry numbers. You're just taking the press release numbers. Okay. Correct, sir. Okay. So disclosure. First disclosure. Achha. Then when it comes about two-wheeler, see, you should start always with two-wheeler, because that was the growth led, right? Okay. Okay. Achha. Now what happens when I am listening to you, I think about investments. Okay. Today also, when I'm listening to you, I am just finding which stock is better. That is my mindset to listen to your news. Okay. Listen to any article. Because as an investor, as a fund manager, when you are presenting this, I don't want the data point. I am just analyzing with the data points what will be the growth rate, or which company should I focus on. Okay. So you can say, you can start with two-wheeler. Always start the industry with two-wheeler, four-wheeler. Why? Two-wheeler contributes highest. Four-wheeler is the second. Okay. Got it, sir. So it should be a start point. That's a two-wheeler volume increased. See, I said not to write, 0.19 increased to 1.3 million. Okay. Okay. And you can, have an heading GST rate cut led to increase in two-wheeler. ना अभी सबको same ही reason है. But you can say that, or you can specifically mention कि इसमें क्या grow हुआ है, domestic या exports. Now there's always two parts to your these three lines. Two-wheeler segment जब grow, तुमने यहाँ पे लिख तो दिया two-wheeler segment grow हुआ है, heading तो लिख दिया तुमने, two-wheeler segment grew by 34%. Now what? Domestic or export? तुमने ना domestic or exports. You can write here 37. Two-wheeler segment grew as 37%, 37.4. Two-wheeler segment. Scooters led the growth in two-wheeler segment. Okay, you can write that. Got it. Scooter led the growth in two-wheeler segment, which stood at 34.7% to 1,300 units. Okay. दिख रहा ना यहाँ पे?
स्कूटर्स ने ग्रो हुआ है 37%। अच्छा, तो टू व्हीलर सेगमेंट में ये डालने से अच्छा यू कैन गिव अ बाइफर्केशन ऑफ स्कूटर्स, मोपेड्स एंड मोटरसाइकिल्स। ठीक है सर। ओके, तो ये अच्छा हो जाएगा टू व्हीलर में, अगर टू व्हीलर के नीचे तुमको जगह मिला ही है तो। मतलब ये टू व्हीलर सेगमेंट जब लिखते हो, यहाँ पे जब लिखोगे सेगमेंट में, तो वहाँ पे तुम एक डाल दोगे। सो व्हाट हैपेंस, दिस इंडस्ट्री रिपोर्ट कम्स आफ्टर योर टॉप वन। ठीक है, तो ये जब तुम लाइन लिखते हो ना इंडस्ट्री में क्या ग्रोथ हुआ, तो तुम ये लिख देते हो यहाँ पे फर्स्ट। फिर जब टू व्हीलर का लिखते हो, टू व्हीलर का तुम एक इसी का एक डेटा बना देते हो कि टू व्हीलर सेगमेंट ग्रो, क्या रीजन की वजह से ग्रो हुआ, एंड उसके टोटल सेल, ये जो नंबर ये तो डाले हैं ना नंबर्स, वो सिर्फ बार्स में। दैट कैन बी अ बेटर वे ऑफ प्रेजेंटिंग। ठीक है सर। ओके, या फिर डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट्स, तुमको जो चाहिए वो बताओ। व्हेन यू प्रेजेंट एनीथिंग एनी अबाउट अ सेक्टर, एक ध्यान में रखना व्हाट इज द पॉइंट व्हेन यू टॉक अबाउट डोमेस्टिक एक्सपोर्ट। ठीक है, मतलब टू व्हीलर सेल्स इंक्रीज 34%, उसमें क्या हुआ? अच्छा, यू सेड स्कूटर लेड द ग्रोथ। सो domestic sales increased 38% while exports increased to 25.9%. Okay, अच्छा, the domestic growth was led by TVS or Bajaj Auto, whatever it is, and the export growth was led by which company? बस that's it, हो गया ओके। तुम्हारा टू व्हीलर के बारे में। सेम गोज विथ फोर व्हीलर। फोर व्हीलर में क्या हुआ है? फोर व्हीलर में हैचबैक ग्रो हुआ है, करेक्ट? सो व्हाई आर यू राइटिंग अबाउट एसयूवीज? मेजरली क्या ग्रो हुआ है? हैचबैक 29%। ओके, सो फोर व्हीलर सेगमेंट ग्रू 24.4%। अभी यहाँ पे ऐसा क्यों है? यहाँ पे 17.7 है, यहाँ पे 24% क्यों है? सेम होना चाहिए ना। यहाँ पे ये 272 क्यों आया निकेत? सर ये बाइफरकेट करा था, लाइक इसका डेटा नहीं मिल रहा था तो। अच्छा ओके, ये से डोमेस्टिक होगा, फिर हाँ डोमेस्टिक तो सर। मिलेगा। ये डोमेस्टिक ही होगा, ये बाइफर्केशन डोमेस्टिक। ये तो कहाँ पे मिला हाँ, तुमको फिर डेटा दिसंबर का? ये खुद से करा सर मैंने, लाइक अज्यूमिंग टाटा मोटर्स का 50-50 सेल्स आ रही है सेडान लाइक हैचबैक एंड उससे, एंड मारुति की भी सेम, एंड हुंडई की भी अच्छा नहीं नहीं, सेम। वो ऐसा मत करना, वो ना ओके। अभी मत करना ये। वो जब तुम्हारे तो ऑटो डेटा पंडित मिल के नहीं रहा था नंबर्स आएंगे सर। ना, हाँ वही वही। ऑटो पंडित, तो उसके बाद ही करना वो। ओके। वो सिर्फ तुम्हारे, वो मैंने बोला था तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए करना कि क्या होता है आसपास, वो डालना मत रिपोर्ट में, क्योंकि ऑब्वियसली एज एन एनालिस्ट मैं देखूंगा कि नंबर्स टैली क्यों नहीं हो रहे। एंड ओके। फिर भी नंबर्स टैली होने चाहिए अनिकेत, अगर तुमने लिया भी, लेट्स से 318 का डोमेस्टिक कितना है? डोमेस्टिक इज, फोर व्हीलर का डोमेस्टिक एक्सपोर्ट नहीं लिखा था ना, तो डोमेस्टिक एक्सपोर्ट, तो डोमेस्टिक एक्सपोर्ट में फिर कुछ टैली हो जाएंगे फिर इसके लिए, तो ये शायद डोमेस्टिक नंबर्स ही होंगे। हाँ। ओके, तो वो भी टैली होने चाहिए। तो इट ऑलवेज हर सेक्टर का डोमेस्टिक एक्सपोर्ट फिर उसके ब्रेकअप, डोमेस्टिक एक्सपोर्ट उसके ब्रेकअप, तो ये सिर्फ हमको टू व्हीलर और फोर व्हीलर में मिलने वाले हैं। फोर व्हीलर में डोमेस्टिक एक्सपोर्ट, फिर उसके नंबर्स, इसमें भी डोमेस्टिक एक्सपोर्ट्स, एंड फिर उसके स्कूटर्स, मोपेड्स, वो सब। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर व्हेन यू प्रेजेंट इट, ऐसे ही प्रेजेंट करना है, डोमेस्टिक एक्सपोर्ट एंड टॉप, डोमेस्टिक एक्सपोर्ट एंड टॉप, बस हो गया, नथिंग एल्स टू प्रेजेंट। क्योंकि ओके। वो क्विकली ना तुमको तीन सेगमेंट के बारे में मुझे पता चल गया, सॉरी दो सेगमेंट के बारे में, फोर व्हीलर्स और टू व्हीलर्स, बिकॉज वही दो इंपॉर्टेंट सेक्टर है। बाकी सीवी तो छोटा ही पार्ट होता है, वो तुमने बता दिया, सीवी कॉन्ट्रीब्यूट ओनली 20%, नहीं सॉरी, सीवी कॉन्ट्रीब्यूट ओनली 8%। 8%। ओके, एंड ये अच्छा, और ये भी जब लिखते हो ना तो कैसा टू व्हीलर शुड, ये ना ऐसा डार्क लाइट 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 होते जाता है हाँ उसको तुम्हारे अरेंज जो, कर। हाँ तुम्हारे अरेंज नंबर्स भी वैसे अरेंज होने चाहिए कि डार्क लाइट लाइट लाइट। ठीक है ठीक है ठीक है, ताकि मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि इसमें भी समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्या है, क्योंकि अगर मैं ये पढ़ता हूँ तो मुझे पता है डार्क इज टू व्हीलर, उसके लाइट इज फोर व्हीलर, उसका छोटा इज थ्री व्हीलर्स, एंड देन अदर्स। ओके, सो हमारा पूरा फोकस ऑन द ऑटोमोबाइल पे, फोर व्हीलर्स और टू व्हीलर्स पे होना चाहिए। विच जैसे मैंने कैसे बोला कि डोमेस्टिक ग्रो हुआ है, मोपेड्स ग्रो हुआ है, या स्कूटर्स ग्रो हुआ है, जो तुम्हें हेडिंग में लिख दिया। फिर डोमेस्टिक सेगमेंट इंक्रीज, किधर है तुम्हारा डोमेस्टिक लेट 38% ग्रोथ। एग्जाम रीजन क्या था, एंड एक्सपोर्ट का रीजन क्या था, इंक्रीज हुआ डिक्रीज हो गया। फिर डोमेस्टिक एक्सपोर्ट वाज, सॉरी डोमेस्टिक सेल्स वाज लेड बाय ग्रोथ इन टीवीएस, और फिर स्पेसिफिक मॉडल का नाम है तो तुम लिख दो, नहीं पता है तो छोड़ दो, क्योंकि अभी मॉडल्स के नाम कल ही आए इनफैक्ट। अच्छा। ओके ओके,
तो जब तुम फर्स्ट बनाते हो तो जब अपडेट करोगे तो वापस तुमको यहाँ पे ही अपडेट करना ना, फिर कौन से मॉडल्स में ग्रोथ हुआ है, दैट्स इट। हाँ करेक्ट सर। ठीक है, तुमको पता, क्योंकि क्या है ना, व्हेन आई वाज लिसनिंग टू यू एज एन एमबीए ग्रेजुएट और एज अ सीएफए या एज एन एमबीए एज एन सीए, मेरा तुमसे बहुत एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, कि अरे तुम ना मुझे कुछ अलग बताओ, तुम ये बताते हो तो मुझे कंपनी का नाम कहाँ पे है बीच में। फिर जब तुम ना, इफ पॉसिबली इफ यू हैव सेड दैट बिकॉज लेड बाय जो डोमेस्टिक का, ये आ सकता है यहाँ पे अलॉन्ग विद रूरल डिमांड सपोर्टेड ग्रोथ, ये तो डोमेस्टिक में हुआ है, आई नो दैट। एक्सपोर्ट में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, हाँ करेक्ट। एक्सपोर्ट में तो अलग है। तो क्यों ग्रो, क्या ग्रो हुआ है, डोमेस्टिक एक्सपोर्ट के रीजंस, एंड फिर डोमेस्टिक लेड वाज ग्रोड बाय टीवीएस, एंड अगर स्पेसिफिक मॉडल होगा तो, या फिर वहां पे लिख सकते डोमेस्टिक सेल्स वाज लेड बाय टीवीएस विच ग्रू 30% ईयर ऑन ईयर, बस दैट्स इट। ठीक तो है मेरे सर। 3 लाइन में वो प्रेजेंटेशन हो गया। तो लिखा अच्छा है ना, प्रेजेंटिंग इज फाइन, ये विल अवॉइड दिस, ये सेगमेंट इसमें कुछ समझ नहीं रहा है क्या हो रहा है। ठीक है, ठीक है और ये सर। यूजुअली बार्स में होता है, ये चलेगा वैसे, बट काफी वाइट स्पेसेस आ गए यहाँ पे। अच्छा। सेगमेंट ग्रोथ यू कैन राइट यहाँ पे ही, नीचे इधर जो करोगे ना, यहाँ पे सेगमेंट ग्रोथ डाल दो चाहिए तो। फिर इसके नीचे, अब इसके सामने क्या है, सेगमेंट ग्रोथ के साथ क्या लिखोगे, वो एक प्रॉब्लम है। हाँ। सेगमेंटल ब्रेकअप तो यहाँ पे लिखा है। तो ये क्या कर सकते हैं ना, व्हाट यू कैन डू इज, अगर तुमको ऐसा दोनों साथ में लिखना है तो हमेशा बोलो ना कि 2 चार्ट्स तो होते हैं, एक चार्ट बहुत रेयर होता है। तो ये चार्ट जो है ना, वो तुम पूरा फ्रॉम December 24 to December 25 पूरा ऐसा डाल सकते हो यहाँ पे चाहिए तो। अच्छा वो बड़ा हो जाएगा। हाँ, फिर ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। फिर तुम ग्रोथ लाइन भी डाल सकते हो, मंथ ऑन मंथ ग्रोथ क्या हुआ है, वो भी तुम तो मुझे समझ जाएगा कि क्या हो गया। ठीक है सर। ओके, और फिर ये तुम, जैसे सेगमेंट वाइज है तो सेगमेंट वाइज तुम यहाँ पे ब्रेकअप दिया है ना 70, तो आई विल बी मोर इंटरेस्टेड टू नो कि अरे यहाँ पे क्या ग्रोथ हुआ है। ठीक है, ये दो उसका ब्रेकअप क्या है, टू व्हीलर कितना है, 998 था, 331 हो गया। ओके, कि यहाँ पे तो मुझे दिख ही रहा है ग्रोथ परसेंटेज क्या था, परसेंटेज डालने की वापस जरूरत नहीं है। टू व्हीलर, ओके, तो ये तो मैं ऐसा डाल सकते चाहिए तो क्या तुम्हारा रिपोर्ट थोड़ा बड़ा दिखेगा। सेम है, तो सेम कंसेप्ट, थ्री व्हीलर्स और सीवीज में भी, सीवीज में भी क्या ग्रोथ हुआ है, एक्सपोर्ट कितना है, डोमेस्टिक कितना है, एक्सपोर्ट कितना है। फिर डोमेस्टिक में कौन ग्रो हुआ है, एक्सपोर्ट में कौन ग्रो हुआ है, एक ही कंपनी है, दो अलग अलग कंपनी है। फिर क्या होगा ना, जब तुम लिखोगे, लेट्स से मैं बोलता हूँ कि टू व्हीलर्स में डोमेस्टिक टीवीएस हैज ग्रोन बट एक्सपोर्ट्स में हीरो हैव इंक्रीज, ओके, तो माय हाँ क्वेश्चन विल कम, अरे यार क्या हुआ है ऐसा, मतलब आई विल स्टार्ट थिंकिंग कि चलो अनिकेत हैज टोल्ड मी समथिंग व्हिच इज वर्थ टू लिसन। क्योंकि लेट्स से अगर मैंने पढ़ा ही नहीं है ये, मैंने अगर ऑटोमोबाइल पढ़ा ही नहीं था, तुमने जैसे अपडेट कर दिया क्विकली, जैसे फर्स्ट डे को आ गया रिजल्ट एंड यू हैव अपडेटेड इट, तो मेरा तो इंटरेस्टेड होगा ना, यार क्या बता रहा है ये, टीवीएस में ऐसा क्या हुआ है कि उसका ग्रोथ हुआ है। करेक्ट फिर सर। मेरा वो भी होगा कि अरे टीवीएस ग्रो हुआ तो गिरा क्या है फिर, तो बजाज और हीरो में क्या हुआ है। तो उल्टा भी कर सकते हैं कि बजाज वाज द लगार्ड इन दैट, लेड बाय टीवीएस, लेड बाय टीवीएस 30% ग्रोथ, हीरो एंड बजाज। तो फिर वो वापस आई एम क्यूरियस अबाउट कि अरे यार ये दोनों में क्या हुआ है, बजाज और हीरो में क्या हुआ है। सो हमेशा यू हैव टू मेक द लिसनर क्यूरियस। आई विल से जब जब स्टॉक्स के नाम आते हैं ना, मतलब मैं पर्सनल बात कर रहा हूँ, जब जब स्टॉक्स के नाम आते हैं ना, तो वी गेट इंटरेस्टेड, वरना तो सब ना ओवरऑल ऐसा ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ठीक है, डन सर। और ये वैसे बोला, ये मत लिखना, पॉइंट फ्रॉम लिखने की भी जरूरत नहीं। ओके। वॉल्यूम इंक्रीज 27%, थ्री व्हीलर में ज्यादा कुछ है नहीं बनने के लिए, तो ये तो लिख सकते हैं, यही तुम्हारा हेडिंग हो सकता है, थ्री व्हीलर सेगमेंट ग्रो 80% ऑन बैक ऑफ स्ट्रॉन्ग ई कॉमर्स डिमांड। ओके, एक ही कोई पॉइंट, इससे क्या हुआ जो विच यू थिंक दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। डन सर। और ये तुम्हारा ऐसा यहाँ से क्यों हुआ है 20 से। ओके गाइस, लेट्स से सब कोई प्रॉब्लम था, आई विल, मैं आज ही बता देता हूँ हाउ टू मेक दिस, ये चार्ट कैसे बनाना है, विल सेव दिस वीडियो टुडे। लेट्स से मैं अभी के अभी चार्ट बनाता हूँ ये,
फर्स्ट आई वांट निफ्टी डेटा एंड फिर मुझे चाहिए होगा निफ्टी ऑटो का डेटा. ओके, इन दिस प्रोबेबली. सो ये कहाँ से मिलेगा मुझे? एक्सेल पे. तुम्हारे पास है क्या डेटा अनिकेत इसका? 1 मिनट चेक करता हूँ सर. एक्सेल फाइल है इसका? तुमने कहाँ से किया है? जो भी किया है वो, 1 मिनट देख रहा हूँ सर. या फिर मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा? नथिंग एल्स. एनीवन? अंकिता तुम्हारे पास है क्या डेटा निफ्टी ऑटो और निफ्टी का? सर मार्केट ट्रैकर में जो हम अभी बना रहे हैं बस वही है मेरे पास. वही है क्या? अच्छा, ठीक है, हाँ. ठीक है. So how you go to indices. हाँ सर, ये मंथली वाइज है मेरे पास. 1 मिनट भेजता अच्छा, हूँ. तो एक सेकंड में कर लेता हूँ जगह चलने दो सबको. हाउ यू डू इट? यू गो टू NSE इंडिया वेबसाइट. ठीक है, यहाँ से गो टू मार्केट डेटा. मार्केट डेटा में गो टू इंडाइसेस. यू वांट द प्राइसिंग. ओके, अच्छा सॉरी, मार्केट डेटा में, सॉरी नॉट इंडाइसेस, हिस्टोरिकल रिपोर्ट्स. ओके, हिस्टोरिकल रिपोर्ट्स. हिस्टोरिकल रिपोर्ट्स यहाँ पे सी हिस्टोरिकल इंडेक्स डेटा. हिस्टोरिकल इंडेक्स डेटा. Click here. I'll get all the data. Now we have to talk from one point. So select equity. Which index we want? First is broad market index. That is Nifty का data चाहिए. So Nifty 50. Okay. Time period. We'll select the time period. We want it till Jan 12, but from last Jan. Okay. 2025. It's 12 Jan. 1 year data. 12 Jan 2025, 12 Jan 2026. Now since it was December, so we'll talk about December because we're talking about December numbers. So we'll not take Jan, we'll take December. Okay, December to current today. Okay, submit. 1st December to 12th Jan. Okay, so I will download this file. Okay, this file is downloaded. So now second index we want is the sector auto index. So sectoral index. And now it was Nifty auto. Okay, December 1 to December 12. Submit. From 9 Jan. Okay, we have the data, so you can just download this. Okay. So I have now 2 files. Oh, so sorry. With 2024 ना, so sorry. एक ही आया वो. So sorry. December 24. It cannot be more than 1 year. Okay. So whichever date you are making the report, वहां से वो होना चाहिए. तो let's say December, January में data आता है तो we'll take about January 1st को तुमने मने assuming, and then 24, Jan 25. ठीक है, Jan 25, 26. जो डेट पे तुम रिपोर्ट बनाते हैं वो डेट का डेटा लेना. Jan 21 to 24, 1 साल का. Download, that is for Nifty auto. Same way now I will do for Nifty 50. Jan 1 to Jan 26. So, Nifty auto. Guys, ये करें. Many of you have asked me this doubt, ये कैसे बनाते हैं? I will save this video now क्योंकि हर बार वो वीडियो सेव नहीं हुआ था. Okay, we have Nifty auto, we have Nifty 50. So make sure the date is same. अच्छा, now we want from this previous to, past date to current date. So this is January, so we'll change this to. See how I do is I use the function over here, sort and filter. Put this filter, or else
there is a shortcut key, Alt D F F. Alt D, D for Delhi, F F. Now I will do it from oldest to newest. Okay, from Jan 25 to Jan 26. Okay. Then for Nifty Auto, Nifty 50. So I will select all this entire, Control X, cut, and I will paste it over here. Okay. Because I want all the numbers straight in that same format. So again, Alt D F F. So Alt D F F over here, and then we want it from oldest to newest. Same Jan, so we can see here, A Jan say 1 Jan. The date should be same for all. So now we don't want open high, we just want the close date. Just want the close date. Abhi already we know the dates. वापस date की जरूरत नहीं है. Can. सर इसमें एक क्वेश्चन और था. हाँ. जैसे निफ्टी टूरिज्म इंडेक्स 8000 पे है एंड निफ्टी इज एट 26, तो वो मतलब हाँ, वो तो जो वो नहीं लाइन है करना वो है. तो नीचे रहेगी. तो हमको ना वो करना ही नहीं है. क्लोजिंग प्राइस से हमको ये कर प्राइसिंग लेना ही नहीं है. अभी तुम्हारा ऑटो है, इसके लिए तुमको आसपास था. तुमको स्टॉक लेना होगा तो निफ्टी एंड स्टॉक के बारे में करना होगा तो कैसे करेगा? वो निफ्टी एंड स्टॉक्स का नहीं करना है. व्हाट यू डू इज, नाउ यू टेक द चेंज. ओके, यू अज्यूम दिस इज 100. ओके सर, क्या चेंज हुआ था? 24,000 हुआ निफ्टी 23 से, करेक्ट? ऑटो -1, so that is 4% jump. Okay, so this is how. And then to the end. Okay. Okay. पूरा end तक आ गया. Same way over here, you can just copy this. पूरा का पूरा. Just copy and paste it over here. Okay. ये चेंज निफ्टी का चेंज था. ये तुम्हारा था निफ्टी ऑटो का चेंज. ये निफ्टी 50 का चेंज. Now you have to take a base of 100. Assuming if both were 100, तो वहां से कितना चेंज होगा? So obviously I know that 100 into 1 plus this, and I can close the bracket. वो present value is equal to 1 plus n. Future value is equal to present value into 1 plus r. ये हो गया. मतलब assuming कि अगर निफ्टी ऑटो उस दिन 100 था और निफ्टी भी 100 था, तो क्या हुआ है? ऑटो 103 हो गया है. निफ्टी कितना हुआ है? निफ्टी इज 101. एंड फिर वो यू मेक अ बेस सेम, एंड अभी फिर उसको फुल यहाँ पे कर देता हूँ सेम वे. कॉपी इट. ओके, आया समझा अनिकेत क्या किया मैंने? बेस मैंने सेम कर दिया दोनों का. हाँ सर, गॉट इट. हाँ, तो अभी जब तुम चार्ट बनाओगे, नाउ व्हाट यू मेक, नाउ यू सिलेक्ट दिस. ये 100 प्लस दिस 100. हाँ, ये ऑल्ट कंट्रोल दबा के करना है दोनों. सिलेक्ट दिस ऑल, इंसर्ट. ये चार्ट है, लाइन चार्ट. फर्स्ट अभी देखो हमारा बेस सेम हो गया. ओके, द बेस इज सेम. अभी जैसे मैंने बोला कि यू कैन, क्योंकि कुछ समझ नहीं रहा ना इसमें क्या हो रहा है, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन चेंज दिस फॉर्मेट एक्सेस. हम हमारा एक्सेस चेंज करेंगे. सो व्हाट वी वांट, सी 20 का डिफरेंस है ना, और चालू का से हो रहा है 100 से, तो वी कहना से हम चालू 80 से करें. मिनिमम 0 लिखा है. व्हाट यू कैन डू इज वी कैन स्टार्ट फ्रॉम 80. सी दिख रहा है फर्क? 80 नीचे है तो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम, ठीक है अभी 85 तक ये गया है तो दैट्स फाइन. एंड मेजर 5 नीचे तो वी कैन टेक इट एज 10. सो दिस दिख रहा है फर्क? अभी 130 नहीं चाहिए, 30 भी ज्यादा हो गया क्योंकि 125 लेता है. लेट्स डू इट 125 मैक्सिमम. ओके, तो 125 लगे तो मेक श्योर मेजर भी 5 करना पड़ेगा तुमको, कि तुम लोग 5 में ले रहे हो. आया? नाउ स्प्लिट दिस. नाउ यू सी क्या फर्क पड़ रहा है अभी. हाँ, ये चेंज करना रह गया. ब्लू वॉज निफ्टी ऑटो,
do is select data, series A, edit. It was a series A. Select, click on this, edit. Series A Nifty Auto था, you can put it Nifty Auto. Okay. And फिर series 2, edit. It was Nifty 50. And then okay. आया change हुआ Nifty 50, Nifty Auto. Okay. See this? Now you can see the change differently. क्या हो गया है Nifty Auto? यहाँ पे Nifty Auto ज़्यादा गिरा था, Nifty कम गिरा था. 100 से दोनों चालू हुआ. अभी क्या Nifty Auto has outperformed, but Nifty has not outperformed this year. अभी ये डेट्स भी है. अभी डेट्स तुमको यहाँ से लेना है. What you can do is again select data. ये जो 1 2 3 4 है ना, select this and we'll take from 1 Jan to end. Okay करते हैं. इसमें there will be a problem कि वो ठीक है. अभी तो आ गया, तो इसको भी तुम चेंज कर सकते हो. अभी सब आ तो रहे. ओके, फॉर्मेट एक्सेस. अच्छा, कभी किसी ने मुझे बोला कि सर वो डेट आ नहीं रहा है, तो तुम यहाँ पे टेक्स्ट एक्सेस भी कर सकते हो. कभी कभी ना आते नहीं है डेट. अभी तो आ रहा है कि 1 Jan दिख रहा है. कभी कभी नंबर्स कुछ अलग आ जाते हैं. किसी ने मुझे बोला था क्लास में, यू कैन डू दिस टेक्स्ट एक्सेस, तो अपने आप वो नंबर्स आ जाएंगे. फिर यू कैन ऑल्सो चेंज दिस. तो ऐसा भी, तो यहाँ से भी यू कैन डू दैट. हॉरिजॉन्टल है ना, यू कैन दिस कैन डिलीट. ऐसा भी तुम वो चेंज होता है ना. प्रीवियसली वाज बेटर. दिस वाज मच बेटर. एंड यहाँ पे इसका usually वो डेट एक्सेस कर तभी आता है. what you can do is format access. if it's on the date access, डेट एक्सेस किया तो यू कैन गेट द मेजर डिफरेंस. तुमको कितना डेट लेना, अभी सब डेट देने की जरूरत है नहीं. तो इसमें हम लोग ने ऑलरेडी 14 डेज लिया है, मिनिमम मैक्सिमम. what you can do is you can this is July, see 14 है days, you can take 30 days. ऐसा भी दिखा सकते हो. इट्स फाइन. अच्छा, अभी यहाँ पे ना डेट आता है जो 27 है, बट वी आर लेट्स से हमारे पास नंबर है 1 Jan का, तो वी वांट द 1 Jan डेट ना. ये 1 Jan का नंबर है कि 1 Jan अभी आया ही नहीं यहाँ पे. सो व्हाट यू कैन डू इज, तो वो तुम 30 डेज नहीं कर सकते, तो यू हैव टू रिड्यूस दैट. लेट्स से 25. वो Jan से 25 डेज लेता है, तो यहाँ से जब 25 डेज लगेगा, 22 से 25, तुमको वो और कम करना है. 20 डेज, 10 डेज. ये यहाँ maximum date is around this looks better. Okay, एक ही आता. Fine. This is your chart, how it is. So I will save this. पहले भी सब charts ऐसे ही बनाने. Okay. We'll take the base and then you can take the line. सेव करके कोर्स मटेरियल में डाल देता हूँ. EM15 में I will upload this. Okay. Now no more problems कि सर कैसे करना है. This is how it is done. And ये तुम अपने नॉर्मल फाइल्स में भी कर सकते हो. And you can obviously copy this. ये छोटा कर सकते हो. You have to change the depending on your color. वो तो तुमको आता है कलर क्या चेंज करना है. कलर को फाइन. अच्छा, यहाँ पे ना और एक चीज था. I would like to
tell you this na, this you can put some outline over here. मैं बोल्ड कर रहा हूँ तो ना बोल्ड में इट लुक्स मच बेटर तुम्हारा ना यहाँ पे, वरना इसके फाइल में भी अनिकेत तुम्हारे इसमें भी ना वो ये पॉइंट्स तो नहीं आने चाहिए. रिमूव द पॉइंट्स. हाउ टू रिमूव? यहाँ से डेसिमल से तुम निकाल सकते हो फॉर्मेट एक्सेस से. रिमूव द डेसिमल यहाँ से. I can use a solid line. So I can use this line. कैसा ना? We used to do this to have this solid line. उसको will change the color to black. And यहाँ पे ना there is a dash type. यहाँ पे भी go change it to black. Make a solid line. तो ये ना ये थोड़ा it looks better. See this? मैं बोलना भूल गया क्लास में कि this looks much better. Okay? फाइन. ये भी एक ऐड करना तुम्हारे चार्ट्स में, सब चार्ट्स में जो भी तुम डालते हो ना चार्ट्स, तो मेक श्योर यू चेंज दिस. आई एम नॉट श्योर और एक कुछ आने का इसमें. लेट मी सी डैश टाइप. No problem. Do this. Make sure your chart should look much in a better way. Okay. तो ये एक अच्छा लगता है and you can bold this if you want. Okay. अगर तुमको यहाँ पे डेसिमल्स है तो यहाँ से नंबर में जाके ना, नंबर्स में जैसे ऐसे आता है, कभी कभी ऐसे होगा, तो ये यहाँ पे जाके रिमूव इट एंड डू इट. मेक श्योर ये सब स्मॉल स्मॉल चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस ऑल थिंग्स मैंने खुद किया था ये, एंड इट लुक्स मच बेटर. बिकॉज तुम बोले कितने भी अच्छे एनालिस्ट क्यों ना हो, इफ यू आर नॉट प्रेजेंटिंग इन अ प्रॉपर वे, यू आर नॉट प्रेजेंटिंग इन अ प्रॉपर वे, नो वन वांट्स टू लिसन टू यू. ये एक कंसेप्ट है आईबीज में भी. इवन इन आईबीज व्हेन यू गो, देयर इज अ कंसेप्ट दैट पीपल डोंट लाइक इफ यू आर नॉट प्रेजेंट इन अ बेटर वे. तुम फिर कितने भी अच्छे एनालिस्ट क्यों ना हो. दैट इज व्हाई यू नो एमबीएस आर प्रेफर्ड, आईएम गाइज आर प्रेफर्ड, बिकॉज आईएम वालों को पूरा टाइम फोकस प्रेजेंटेशन पे ही होता है. I'll remove this outline. I'll remove all the outline, and then I will go and copy this in a Word file. ऐसा करके. अगर तुमको लगता है ये तुम कॉपी कर रहे हो छोटा आ रहा है, तो I have told you what to do. Format access, date में जाके change the dates to 40 days. तो कम दिख जाएगा. ओके. कि मैं जब स्मॉल कर रहा था देखो कैसे आ रहा था. इज नॉट लुकिंग गुड. 40 50 तुम्हारी हिसाब से तुमको जो डेट चाहिए यू कैन यूज दैट, वॉट एवर लुक्स गुड. फेयर इनफ. ऑल गुड अनिकेत? यस सर. अच्छा त्रिशूल तुमने भी बनाया था, ठीक है? समझे क्या? yes sir, got it. ओके. आई थिंक विल सॉरी आज टाइम चला गया. सो एक दो न्यूज़ थे ऑटो के बारे में. आई थिंक त्रिशूल तुमने ही लिखा ना एफएम इसके बारे में. यू कैन टेल अबाउट द हैचबैक. क्या है आज? सर मैंने इसके बारे में लिखा है, मारुति सुजुकी. हाँ, हाँ, बोलो ना. एक्सपांशन कर. हाँ
Hello everyone. So हाँ today I will be presenting news on Maruti Suzuki. So Maruti Suzuki plans major capacity expansion to meet the rising demand. So currently Maruti Suzuki has a existing manufacturing capacity of 2.4 million units per annum across the Gurugram, Manesar and Hansalpur, which is currently fully utilized. And to support the future growth, the company has proposed a additional capacity of 1 million units per annum. The board has already approved the investment of 49,000 million rupees towards the land acquisition and development. This plant capacity will reflect the Maruti Suzuki's strong confidence in the sustained domestic and export demand, positioning the company strengthen its market leadership in the coming years. So the new capacity which add the proposed capacity in addition of 1 million units. So yeah, that's the news. विजुअल प्रॉपर्ली 15 चीजें बोलना बस, दैट्स इट। इतना अटकते क्यों हो बात करते हो? मैं अटकता हूँ नहीं सर। तो तुम क्यों अटक रहे हो? तुम्हारे न्यूज है, मैं बोल रहा हूँ तो मैं नहीं अटक रहा हूँ, तुम अटक रहे हो, ऐसे क्यों? 3 चीजें बोलो, क्या था न्यूज? चलो कॉन्वर्जेशन करते हैं, क्या था न्यूज हाँ, कुशल? क्या तो था सर न्यूज? वो मारुति सुजुकी एक्सपांशन कर रहे हैं उनके प्लान्स में, हाँ सो वो इंग्लिश अभी में बोलो, 1 मिल या इंग्लिश सो में बोलो। हाँ या सो Maruti Suzuki has invested in the plant which is at the capacity of 1 million units per annum. The currently the capacity is नहीं नहीं, 2.4. मैं पूछता हूँ फिर तुम उसका रिप्लाई देते हो सिर्फ, ठीक है? Okay, okay. क्या था न्यूज? मारुति इज एक्सपांडिंग इट्स प्लान। किधर था वो या न्यूज? पेपर में था, सॉरी। सर वो पेपर में नहीं था, मेरे को बीएससी के वेबसाइट से मिला क्योंकि मैं नंबर पंचिंग कर रहा था ना, तो उधर एक न्यूज़ था न्यूज मैंने देखा नहीं। कॉर्पोरेट एक्शन में। ठीक है, बट वो तो अपडेट था ना, ठीक है, ओके फाइन। हाँ, ठीक इट्स है, तो मोर अभी अबाउट अपडेट अपडेट। था तो ठीक है, अपडेट था फाइन, मुझे नहीं पता था, तुमने बताया मुझे, अप्रिशिएट। हाँ क्या हुआ या अभी, तुमने ये बोला है? Okay. हाँ, मारुति सुजुकी मेजर प्लान एक्सपेंशन टू मीट राइजिंग डिमांड। कितना? व्हाट इज मार सो क्या करे सर मारुति? मारुति इज एक्सपांडिंग इट्स प्लान टू अराउंड मैन्युफैक्चरिंग प्लान टू अराउंड एडिशनल कैपेसिटी ऑफ 1 मिलियन यूनिट पर एनम 2.4 है ना? अच्छा सॉरी, एडिशन वो ऑफ 1 कर मिलियन पर या एनम। व्हाई? बिकॉज ऑफ राइजिंग डिमांड। राइजिंग डिमांड्स, हो यस। गया हेडिंग, हो गया, बस इतना ही न्यूज़ था। अभी क्या है? अभी सो और सर न्यूज़? हाँ, सो द बोर्ड हैज ऑलरेडी अप्रूव्ड द इन्वेस्टमेंट ऑफ 49,600 million rupees towards the land acquisition. नहीं, ये 469 बिलियन हो जाएगा ना फिर ये, सॉरी 49.6 बिलियन हो जाएगा। हाँ सर, पहले सब नहीं मिलियन में थे ना, तो मैंने फिर नहीं, वो तो सब मिलियन मिलियन में। तो मिलियन, बिलियंस और ओके थाउजेंड्स, ओके वो कुछ भी यूज कर सकते हो तुम, ऐसा नहीं कि मिलियन है तो मिलियन यूज करना है। बड़ा ओके नंबर है ना ओके, ये। यस। हाँ, वो 49.6 बिलियन टूवर्ड्स लैंड एक्विजिशन प्रॉपर्टी एक्टिविटीज, बस हो गया। और हाउ आर दे फाइनेंसिंग बाय? बाय इंटरनल accrual and external borrowings. तो ये कैसे बोलोगे, लाइन पूरा कैसे बोलोगे? So the board has already approved the investment of around 4.96 billion units, and they will planning to finance वो through पॉइंट internal accrual. 49.6 मिलियन रुपीस, बिलियन रुपीस, यूनिट्स थोड़ी है। Sorry, 49.6 billion rupees हम्म, towards and the expansion will be financed through the mix of internal accrual and the external borrowings. बस हो गया। हाँ, और क्या था तुमको बताना था? ये था, कितना है उसका एग्जिस्टिंग कैपेसिटी? The current existing capacity of the Maruti Suzuki manufacturing capacity is around नहीं नहीं, 2.4 तुम ऐसा बोल million. सकते हो, और फिर ऐसा बोल सकते हो, मारुति एग्जिस्टिंग कैपेसिटी स्टैंड्स एट 2.4 मिलियन यूनिट्स पर एनम अक्रॉस गुरुग्राम, मनीसर, खरोडा एंड हंसलपुर, Hansalpur, yeah. which is currently fully utilized. Okay. ओके, अच्छा तुम थोड़ा कर सकते हो। गुरु मनेसर किधर आता है? हरियाणा में सर। है ना, खरोड, ये खरोड का वो किधर भी आता है? हरियाणा में है। हरियाणा आता है। एंड हंसलपुर, वो गुजरात में है। तो यू कैन राइट दैट currently has a capacity 2.4 million in cities like Gurugram, Manesar, Kharoda, which is in Haryana, and Hansalpur, which is in Gujarat. या कुछ यस डेटा है ना, क्योंकि सिर्फ डेटा है, अभी तुम मुझे डेटा क्या बता रहे हो? कुछ तो अलग बताओ, क्योंकि मुझे नहीं पता किधर आता है ये। कितने यस लोगों को सर, नहीं पता होगा किधर आता है। या
हाँ, क्यों कर रहे हैं अभी कैपेसिटी प्लान? ये राइजिंग तो डिमांड को कैटर हाँ, ये करने के तो लिए। बोला ही है तुमने, तो ये लिखने को दिस प्लान कैपेसिटी रिफ्लेक्ट्स मारुति स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस सस्टेन। ये तो एक्चुअली न्यूज़ नहीं था, तुम मुझे जो अपडेट दे रहे हो। तो यस सर। अपडेट यही था कि सर वो लोग कैपेसिटी, पर ये पुरानी न्यूज़ है, अभी की नहीं है, ये कब आया था ये? सर आज का ही है, 12 जनवरी 26 का ही। अच्छा, फर्दर एक्सपांडिंग, ओके। तो क्या होगा सर, टोटल कैपेसिटी विल बी अराउंड 2.4 मिलियन। कितना बिकता है मारुति गाड़ी टोटल साल में? सर वो मेरे को डेटा है मेरे पास, 2 मिनट। हाँ डेटा, हाँ तो ठीक है, तो वो भी तुम डाल सकते हो ना इसमें कि सर मारुति टोटल सेल, टोटल कार दैट इज सोल्ड इन 2025 कितना था। तो तुमको कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पता चल जाएगा कितना है। और ये यस। फुल्ली यूटिलाइज है तो प्रॉब्लम मैं अज्यूम करूंगा सुशुल की 2.4 मिलियन तो होगा ना, फुल्ली यूटिलाइज कर यस। रहा है तो यस 24 सर। लाख तो होगा ना। यस यस। ट्रू। ये भाई मैं बताओ, एनालिस्ट मैं हूँ तुम हो, मेरा हो गया एनालिसिस करके। हम्म। ठीक है, यस सर। ओके। अंकिता, अंकिता, anything specific? Yes, sir. Yeah, on Sir, I have made the two-wheeler, news on the hatchback, sir. It hatchback. is noticed. Yes, sir. Yeah, So okay. the hatchback share in India is rising, as we have seen in the quarter four. So the PV sale has increased to 24.4%, and it is attributed to the recovery of this is due to the GST cut rates. Sir, due to the GST cut rates, the two-wheeler Uh, owners who are like the first one to drive cars, or they नहीं are अंकिता, नहीं shifting. नहीं, मुझे Yeah. डेट, मुझे जर्नलिज्म नहीं चाहिए, मुझे एनालिसिस हम्म। चाहिए। क्या है, व्हाट इज द न्यूज़ अबाउट? न्यूज़ तो है सर कि हैचबैक्स अभी का मतलब जो हैचबैक्स का ये है वो शेयर है इज इंक्रीजिंग। तो सो जो कितना था, डेटा कितना हो गया, कितना था, कितना हो गया? 1 मिनट सर। ये लिखा है ना यहाँ पे क्या? हाँ हाँ 24.4 हो गया है, अभी 23.5% था वो पीवी सेल्स का। कम हो गया ना? नहीं सर, वो तो बड़ा है ना, 24.4 हुआ ट्वेंटी है। फोर 24 है ना, ये 25 है। ओके सर, आई हैव ग्रो इन द लास्ट क्वार्टर लिखा था, ग्रो इन लास्ट, सॉरी इधर है, ये है, सॉरी मैं फुल ईयर का देख लास्ट रहा था, क्वार्टर। सॉरी हाँ लास्ट हाँ क्वार्टर, हाँ। तो कितने बेसिस पॉइंट से बढ़ा? सर ये बड़ा है आपका 244। क्या 244? हेलो। हाँ यस क्या सर। 244 क्या, 244 क्या, कितने से बढ़ा है? सर बेसिस पॉइंट्स का बात कर रहे हैं ना। तुम कैसे बोलोगे 23.5 से 24.4 हुआ है, मतलब क्या हुआ, मुझे एक सेंटेंस में बता क्या हुआ है, एक ही डेटा आना चाहिए सिर्फ। सर बेसिस पॉइंट्स का आई डोंट रिमेम्बर राइट नाउ। तो उस दिन बोला तो था मैंने क्लास में। हाँ हाँ सर, नहीं आई हैव अटेंड, क्यों टू। नहीं अटेंड किया तुमने क्लास, लास्ट ही तो वीकेंड पे बोला था, परसों के दिन। हम्म। तो सर एक बार फिर से हमको एक्चुअली देखना पड़ेगा वो चीज, बेसिस पॉइंट्स का। वो तो लाइक इट बेसिक है इज ना, कैल। बात कैसे, वरना तुम मुझे बात कैसे करोगे? 23.5 सर एक बेसिस पॉइंट मतलब कितना होता है? सर 100। हाँ तो कितने से बढ़ा है ये टोटल? माइनस करो 23.5 और 24.4, 90, हाँ 0.9। पॉइंट हाँ नाइन, सॉरी पॉइंट नाइन, हाँ 0.9। पॉइंट नाइन ना, इंटू क्या हाँ करोगे, बेसिस से जो टू परसेंटेज है। 100। हाँ तो कितना हो गया? तो ओके ओके, सो 90 बेसिस पॉइंट से वो बड़ा है, राइट। 90 बेसिस पॉइंट से बढ़ा है, बराबर। हम्म 0.9 होगा ना, 0.9 इंटू 100, 90 बेसिस ओके। पॉइंट से बढ़ा है। तो तुम्हारा न्यूज यही आना चाहिए, तुम जब बोलते हो, सी ये हम्म न्यूज तो मैंने भी पढ़ा ना, स्मॉल कार स्टेज कम बैक लेड बाय, तुम मुझे जर्नलिस्ट की तरह क्यों बता रहे हो? सर स्मॉल कार, स्मॉल कार पैसेंजर सेल्स इंक्रीज 90 basis point in Q4 led by GST प्राइस कट। ये तुम्हारा हेडिंग हो गया, ओके सर। बस इतना ही न्यूज़ था, और क्या अभी न्यूज़ में बताने लायक क्या है? न्यूज़ इतना ही था। हम्म। अभी क्या, किसका शेयर वो बढ़ा है फिर हाँ, हाँ ये सर। हाँ अभी बताओ और क्या, अभी न्यूज़ में और क्या है इसके बारे में? सर वही है कि जैसे कि ऑल्टो एस्प्रेसो से, इसका सेल्स मतलब वो ही बाइफरकेट करके बोला हुआ है ज्यादा। हाँ तो वही बताना, हाँ तो वही बताना तुमको। न्यूज़ तो तो हो ही गया, न्यूज़ तो एक लाइन में ही हो गया है कि स्मॉल कार शेयर इंक्रीज कि 90 basis point इन Q4, तो तुम क्या बता रहे थे मुझे इतना टाइम? इतने सर बड़े हम आर्टिकल में सिर्फ एक ही पॉइंट था कि न्यूज़ बढ़ा है, अभी तो सिर्फ डेटा हम्म, पॉइंट चाहिए तुमको बताना है किसका सेल्स बढ़ा है किसका कम हुआ है।
अच्छा अभी ओके ये हुआ क्यों है पहली बात तो, व्हाई इज दिस हैपन, शेयर का जीएसटी सर लेट का और क्या जीएसटी है, रेट कट्स हुआ है और कुछ इसलिए है, और कुछ है, और तो कुछ रीजन दिखा नहीं हमको। क्यों ये था ना, फर्स्ट टाइम बायर्स बढ़ गए, हाँ वही सर हम इलेक्शन आपको है, बता रहे थे कि जीएसटी हाँ कट्स हुआ है ना, तो फर्स्ट टाइम बायर्स जो है टू व्हीलर्स का, दे आर प्रेफरिंग हैचबैक्स रादर देन एसयूवीज। तो हाँ, तो वो से तुम्हारा सेकंड पैराग्राफ हो गया, वो तुम्हारा पैराग्राफ ऐसे चालू होगा कि द सेल्स हैव इंक्रीज एज फर्स्ट टाइम बायर्स, एज टू हम्म व्हीलर्स, as two-wheeler riders upgrade their go to entry-level segment, helping the हम्म segment arrest market share slide. ओके इतना ही न्यूज़ था पूरे इसमें, पूरे आर्टिकल में, हाँ बाकी सब डेटा ही है। हाँ क्या सर। डेटा है वो, व्हाट इज द डेटा, क्या एक क्या तो डेटा सर है? आपका वो सेल्स जो मिनी कार्स का जो सेल्स का है वो जंप हो गया 91.8% से। और दूसरा ये है कि टाटा क्या हुआ मोटर्स है, का सॉरी भी क्या हुआ है, द मिनी कार सेल्स हाँ द ये सर। हाँ बोलो ना, सॉरी सुन रहा हाँ हूँ, तो जो सेल्स है मिनी कार्स का लाइक ऑल्टो एस्प्रेसो एंड वैगनर हाँ आर, दे हैव jumped to 91.8% in December, ईयर ऑन ईयर, ईयर ऑन ईयर, year on year. Yes sir. हाँ इन दिसंबर, And हाँ वो भी है ना, पुशिंग वेटिंग पीरियड्स टू 6 वीक्स, sorry sir. तुमने लिखा ना पुशिंग वेटिंग पीरियड टू 6 वीक्स, हाँ हाँ जिससे कि हाँ ड्यू टू द राइजिंग डिमांड्स आल्सो द वेटिंग पीरियड इज आल्सो लाइक पुश्ड। हाँ सो दे आर ट्राइंग टू। हेलो तो एक सेकंड, तो तुमने यहाँ हेलो। पे लिखा है, पहले मारुति के बारे में लिखा है, मारुति के बारे में, टाटा मोटर्स के बारे में लिखा है तुमने, दो दो चीजें, हाँ हाँ पहले तुमने बोला सेल्स बढ़ा है बिकॉज ऑफ राइजिंग डिमांड, बिकॉज ऑफ फर्स्ट टाइम बायर्स इंक्रीजिंग, ओके, हम्म फिर हम्म क्या वो एक ही न्यूज़ था, ये सब तुमने क्या लिखा है, हैचबैक शेयर इन इंक्रा सेल्स रोज इन लास्ट क्वार्टर, रिवर्सिंग डिक्लाइन इन सिंस कोविड, सेल्स वॉल्यूम, इतना सब नहीं लिखना होता है। फिर क्या हुआ है मारुति में, ओके तो मारुति, ओके तुम्हारा हेडिंग बराबर था, मारुति सेगमेंट्स, मारुति विटनेस ग्रोथ इन एंट्री लेवल सेगमेंट्स, हम्म तो कितना ग्रोथ है, मारुति विटनेस 5% राइज इन एंट्री लेवल सेगमेंट, ओके जब 5%, सॉरी 5% राइज इन फर्स्ट टाइम बायर्स, तो तुमने बोला है कि हाँ टू व्हीलर हाँ से सर। थ्री व्हीलर में, तो तुम्हारे पास डेटा पॉइंट आ गया ना उसके, कि मारुति सर, मारुति हैव सीन अ 5% राइज इन फर्स्ट टाइम बायर्स in the entry level segment. यस सर। ये Maruti's वाला volume increased 21% in the entry level segment, outpacing the 23% industry demand. हाँ ये तो तो ये इंडस्ट्री हाँ हाँ, सर। तो हो गया ना फिर तुम, मतलब आई वाज सेइंग कि ये डेटा पॉइंट्स दो आ गए ना तुम्हारे, हम्म हाँ ये डेटा पॉइंट्स सर मारुति के है ना। हाँ, तो अभी फिर ऑल्टो के बारे में क्यों बात किया फिर तुमने अभी पहले, ऑल्टो एस्प्रेसो सिलेरियो बढ़ गया, ठीक ओके कैसा होता है, जब मैं तुमको पूछा कि तुमने बोला सी फर्स्ट व्हाट इज द न्यूज, कि सेल्स बढ़े, क्यू ऑन क्यू सेल्स बढ़े, 90 बेसिस पॉइंट से सेल्स बढ़े, ओके, ओके स्मॉल कार सेल्स हाँ बढ़े, क्यों हाँ बढ़े, क्यों बढ़े, एक तो जीएसटी लेट करे, दूसरा ये सर फर्स्ट टाइम बायर्स, सॉरी टू का व्हीलर्स डिमांड आर बढ़ रहा है। मूविंग टू, टू व्हीलर्स बायर्स हैव रीच्ड टू एंट्री लेवल कार्स, ओके, ओके हाँ तो उसमें क्या डेटा पॉइंट था, मारुति हैव सेड दैट दे हैव सीन 5% राइज इन फर्स्ट टाइम बायर्स, हम्म ये डेटा पॉइंट हुए, ओके हाँ ये पहले बोलना चाहिए हाँ था। हाँ, हाँ यस फिर यस फर्स्ट सॉरी टाइम सर। बायर, फिर फर्स्ट टाइम बायर में फिर मारुति में क्या हुआ, ऐसा मारुति सेल्स है, तो मारुति की बात आई, मारुति में क्या हुआ, ऐसा मारुति सेल्स हैव इंक्रीज कितना 23%, नहीं सॉरी, मारुति वॉल्यूम हैव इंक्रीज 31%, विच हैज आउटपेस्ड द इंडस्ट्री, वेयर द इंडस्ट्री हैव इंक्रीज ओनली 21%, समझा ना यस सबको सर। क्या हुआ है, कि मारुति हैज, है ना, इन बीट द इंडस्ट्री, फिर क्या हुआ है, वॉल्यूम्स में किसके वॉल्यूम्स बढ़े फिर मारुति में, तो ओके उसमें सर ऑल्टो, सर हम्म मारुति हैज विटनेस, ऑल्टो एस्प्रेसो सिलेरियो एंड वैगनर हैव विटनेस 91% ईयर ऑन ईयर जंप इन दिसंबर सेल्स, एंड दे हैव पुश्ड द वेटिंग पीरियड टू 6 वीक्स, कैसे लिंक हो रहा है चीजें, हो गया, अभी अभी क्या बचा, हो गया पूरा न्यूज, अभी मारुति के बारे में हो गया, इंडस्ट्री के बारे में हो गया, और कुछ है बताने के रहा, और नहीं सर बस टाटा मोटर्स का ही है कि वो लोग इट दे आर जस्ट ओनली एक्सपेक्टिंग, सो ये आई डोंट थिंक कि ये डेटा मतलब लाइक उतना ये है इम्पोर्टेंट है बट। तो ये भी ना, टाटा मोटर्स सेगमेंट शेयर रिमेन फ्लैट, टाटा मोटर्स के सेगमेंट शेयर हैचबैक में सेगमेंट, हम्म जो शेयर टाटा मोटर्स मतलब एक्सपेक्ट शेयर हुआ उनके था, तो सेगमेंट्स फ्लैट ही जो। था, हाँ सर। ये वही हम्म टाटा मोटर्स का सेगमेंट फ्लैट था, ये भी एक डेटा डाल सकते हैं सिर्फ लास्ट में, हाँ वो
हाँ वो फ्लैट है बट Flat है। अभी इसीलिए हम उतना एम्फसाइज नहीं किए इसके ऊपर क्योंकि वो तो जस्ट एक्सपेक्टेशंस तो बता रहे हैं। तो ऐसा बोल रहा है टाटा मोटर्स saw a flat हम्म, growth in the hatchback segment, but Tata Motors expect the hatchback volumes to grow modestly in the second half of ओके FY26. हाँ इसको ऐसे लिख या फिर सकते थे। modest लिखे हुआ है, ये भी लिख सकते हैं टाटा मोटर्स expect the sales to grow by, नहीं ऐसा तो कंपनी है ये ना, हाँ, तो they expect the sales to increase by 15 18 to 20% in financial year 2026. ओके ये तो फोरकास्टिंग है हाँ। हाँ तो ठीक है, डेटा है ना, डेटा पॉइंट है ना, वो बता रहे हैं ना कुछ, तो कंपनी ओके बता रही ओके है ना, खुद खुद कंपनी बता रही है। हाँ हाँ ओके इसको थोड़ा चेंज करना इतना पड़ेगा इजी था ओके। ये न्यूज़ बताने को, क्या बताया मैंने, सबको पता चल गया अभी क्या चल रहा है, तुमको भी पता चल गया क्या चला है न्यूज़ में। हाँ सर वो तो थोड़ा पता था बट स्ट्रक्चर करने में थोड़ा टाइम लग हाँ, गया। तो वही तुमको पता है, वो मुझे कैसे पता है, ओके तुमको जो वही समझा वही मुझे, तुमको ये चीज ना तुमको एक बच्चे को समझा रहे वैसे समझानी होती है। ओके ओके अज्यूमिंग मत करो कि मैं फंड मैनेजर हूँ तो मुझे सब पता होगा, मुझे भी नहीं पता क्या है, मैं पढ़ा ही नहीं है न्यूज आर्टिकल। तुम्हारा न्यूज आर्टिकल पढ़ के मैं सब, क्योंकि सी मैं तुमको एज एन एसोसिएट रखूंगा ही तभी जब तुमको इतना बड़ा न्यूज में छोटा करके दो। था कि इतना बड़ा न्यूज पढ़ने yeah, का कुछ मतलब था, कितने सारी चीजें बकवास लिखे हैं इसमें, हाँ कितने सारे लाइंस ऑफ एडेड है कोर्स अननेसेसरीली, तो तुमको मैं रखा यस उसके लिए ना कि तुम मेरी चीजें कम करके दो। 3 पैराग्राफ में तुमको जो बताना है वो समझना चाहिए, तुमने वापस बहुत बड़ा लिखा है आज, इतना बड़ा नहीं लिखते हैं आर्टिकल। ओके सर मतलब ट्राई तो किया है 2 या 3 लाइन में ही रहने का हाँ तो अभी बट पैराग्राफ इतने सारे क्यों लिखे तुमने, कितने पैराग्राफ लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 पैराग्राफ, 7 पैराग्राफ लिखे तुमने, 7 पैराग्राफ न्यूज भी था क्या ये, मतलब एनालिसिस के लिए। नहीं सर 6 ही था ठीक है हम वो थोड़ा रिड्यूस कर देंगे फिर मतलब 3 पैराग्राफ्स में 3 ही कर हुए ना, देंगे। क्या बताया मैंने, एक हैचबैक सेल क्यों इंक्रीज हुआ, वो भी 3 भी, मेरे पूरे भी 3 नहीं होंगे। ओके हैचबैक सेल इंक्रीज हुआ है, मारुति के इंक्रीज हुआ है, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, उसमें कौन से वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, बस हुआ अच्छा। ऐसा ये तो पता ही है ना, जीएसटी रेट कट पूरे दुनिया को पता है, अभी हम हम्म इतना दिन पढ़ ही रहे हैं कि जीएसटी रेट कट हम्म हो गया, 18 से 20% पे आया है, 28 से 18%, सबको पता है। अलग डेटा क्या था इसमें, सिंस जीएसटी रेट कट मारुति सीन 31% वॉल्यूम, ये तो मैंने बता दिया, 31% वॉल्यूम फास्टर देन इंडस्ट्री, यही था। तो फोकस ऑन डेटा पॉइंट्स की, डेटा क्या है वो आसपास की चीजें बोलनी है उसकी, ओके हम्म सिर्फ डेटा ही बोलना है तुमको, तुमको बाकी चीजें में किसी को इंटर, क्योंकि ये डेटा पॉइंट्स ही तुम्हारे फाइनेंशियल मॉडल्स में काम में आएंगे। इफ यू आर एनालिस्ट यू हैव टू ओनली हम्म टॉक अबाउट डेटा पॉइंट्स, तुमको बाकी बकवास, क्योंकि वो है ना जर्नलिस्ट है, वो बकवास करने के लिए, वो करते हैं क्या, ये बकवास ही करते हैं वो लोग, क्योंकि उनको ये पूरा कॉलम भरना है, तुमको कुछ भरना है क्या, क्योंकि उन्होंने पूरा कॉलम नहीं भरा उनको पैसे नहीं मिलेंगे, तो कुछ ना कुछ अजीब से लिखते रहते हैं वो लोग। सही, ठीक है जर्नलिस्ट सर का काम होता है, जर्नलिस्ट का काम होता है, वो ऐसा है ना, पूरा है तो पूरा वो भर, उनको काम ही होता है भरना है, तो 10 चीजें भी बार बार लिखेंगे वो लोग, तुम्हारा वो काम नहीं, तुमको तो इतना, ये तो इतना बड़ा लिखा है, तुमको सिर्फ 3 पैराग्राफ में क्या लिखना है बस। ओके क्या, हाँ मतलब डेटा पॉइंट्स बस हाईलाइट करना है। सिर्फ डेटा पॉइंट हाईलाइट करना है और कुछ नहीं, पूरे पूरे न्यूज़पेपर में यही करना होता है, डेटा पॉइंट हाईलाइट करना है और उसको फिर स्टोरी बना के कि लिंक करके क्या क्या हुआ है। ओके 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 सर ओके, बॉबी एनीथिंग ऑन द टू व्हीलर, विल टेक लास्ट, आई थिंक आई हैव टू लीव आल्सो। बॉबी ओके एनीथिंग ऑन द ओके टू व्हीलर। शॉर्ट में बताता हूँ. हाँ So basically, the two-wheeler, I'm going to talk about the two-wheeler outlook of calendar year 26. So basically, there's an expectation of growth of 6 to 9% in calendar year 26, supported by affordability post GST and urban replacement demand. So there is something called ABS mandate. So due to this ABS mandate, an entry level segments are going to have an increase of 2 to 5,000 rupees per vehicle in sub 125cc segment, and so this would be a hike of around 7% for the entry level motorcycle and scooters, and in the sub 125cc motorcycle accounts for 75% in motorcycle and 53% in scooters. The monthly sale of sub 125cc two wheelers are monthly sales is around 900,000 units.
And when it comes to EV market is projected to double to 110 billion by 2029 from 55 billion in 2025. Overall two-wheeler growth, yeah. So and its EV penetration is expected to rise in 7.5%. While ABS adds incremental cost, uh, the GST benefit, what you say, it decreases, it partially cushions the demand impact. Uh, and the company specific, if to go company specific, I would say Hero Honda has the highest exposure in the ABS driven affordability. It has around 85.7% volume derived from sub 125cc models. So, conclusion would be that the growth remains intact, underpinned by the GST-led affordability. However, the ABS hikes will pose a near-term risk to the entry-level volumes, particularly in the sub 125cc. So, yeah, I mean, that's my news. So The Bobby, this more, news can be started with a stock price, directly, because we know na 25cc 120 Hero has the highest focus on coming from 125cc. So yeah. this news can be that the ABS mandate to increase price by 2000 to 500 2000 to 5 so 2000 to 5000 rupees Hmm. by FY26. Where is it when it is? Yes, yes. So the First news, January. so the probably the news is not this. The news is about ABS. Huh. Your heading should be that the two-wheelers ABS mandate to increase the price by 2 to 5,000, which expect the industry to be around. So that will lead to a growth of 6 to 9%, or else headwinds from ABS will lead to a growth of 6 to 9% in two-wheeler segment. Got it. Or one more news can be two-wheeler segment expect to grow 6.99% as ABS challenge, as the sector faces headwinds from ABS challenge. Yeah, I'll keep that in mind. That can be a I'll better work way. on the header. Yeah, I'll So keep that. I'll work on my header. Yeah. because now what happens? Let's say when I am saying when I also read the news for the first time, I thought something is happening overall industry, but then I Yes, found that why it is only 6.9, because there is a headwind from ABS. ABS. Okay. Yes, So yes, yes, yes. yeah, so it first is like it may lead to a price hike up to 7% the entry-level motorcycle, which contributes to around 2 to 5,000 per vehicle. This is how it is said. Yes. Okay. Yes. Because that is a better way of saying. And then motorcycles below 125 contribute 70 to 75% of the total vehicles sales, where Hero has the highest number of highest volume coming from below 125 segment. So Hero will be the most impacted. Hero's growth will be Yes. most impacted. Yes, yes, So it could yes. have been That's linked what. because न्यूज अच्छा था, बट इधर उधर लग रहा था ऐसा. हाँ, थोड़ा एक स्ट्रक्चर में गया, हाँ स्ट्रक्चर नहीं था. हाँ हाँ, बट मैंने वो हीरो का इसलिए लिंक किया था, बट वो हाँ स्ट्रक्चर थोड़ा होता तो स्ट्रक्चर हाँ, पता बिकॉज ये न्यूज इसका था ही नहीं कि 6.9 ग्रोथ था ही नहीं, न्यूज तो एबीएस पे था पूरा. नहीं. इट वाज नेवर ऑन द यस, इंडस्ट्री यस, ग्रोथ. यस. आई हाँ, मैंने थोड़ा ईवी का पॉइंट भी ऐड किया था जस्ट इन केस हाँ. ऐसा. And then you can say that the growth ये क्यों है, the growth is expected 6.9% expected by भी जीएसटी तो बहुत बार आ चुका है, अर्बन रिकवरी एंड इन परचेसिंग ऑफ रिप्लेसिंग व्हीकल्स. रूरल डिमांड लिख सकता हूँ हाँ, मैं, so क्योंकि however वो ABS ट्रैवलिंग. हाँ yeah वो भी लिख सकते हो. However पर ABS demand is expected to cause and headwinds for bikes below 125 segment. नोटेड. Okay तो यही था न्यूज़, मतलब which was this news. बाकी सब तो यस. फिर प्राइसिंग था. फिर क्या होगा एबीएस की वजह से प्राइस हाइक होगा 7% से. 7% प्राइस हाइक मतलब कितना हो गया, 2 to 5,000 हो गया पर व्हीकल पे. तो 125cc कितना होता है, मोटरसाइकिल कॉन्ट्रीब्यूट्स 74%. तो ये लोग ने लिखा है 74-75, हम लोग लिखा अप्रोक्सीमेट 75% मोटरसाइकिल. ओके. ओके अभी ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये तुम्हारे लिए ठीक है कि कितना ऑन अ मंथली बेसिस सेल्स ऑफ सब 125 आर एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 900,000. तुम ठीक है, मतलब उल्टा कैलकुलेट करोगे, तुमको अगर पता है 125 से सेकंड कितना है, तो यू कैन डू डायरेक्टली.
ओके टोटल टू व्हीलर, हाँ सर ये भी एक डेटा पॉइंट्स है दैट यू कैन कीप इट कि 125 सेगमेंट अप्रोक्सीमेट 900,000 बिकते हैं इंडिया में। मंथली। ओके हाँ टू व्हीलर्स। यस, बट इसमें ये बोलते क्या स्कूटर एंड मोटरसाइकिल्स रहेगा ना? ये हाँ सिर्फ टू व्हीलर दोनों है ना टू व्हीलर्स है। हाँ ठीक है। हाँ, तो उसमें से मोटरसाइकिल पता है 75 है तो ऑब्वियसली स्कूटर्स विल बी 25। तो इसका भी तुम डेटा लेकर सकते हो मतलब 900,000 में से स्कूटर्स एक्चुअली कितने बिकते होंगे एंड सॉरी मोटरसाइकिल्स कितने हैं स्कूटर्स कितने हैं। हाँ क्या डायरेक्टली 900 इंटू 75। तो ये एक तुम्हारे डेटा पॉइंट्स एक इंपॉर्टेंट आ गया सिंस यू आर फॉलोइंग ऑटोमोबाइल सेक्टर तो दिस ऑल थिंग्स बिकम्स वेरी इजी टू टॉक इन इंटरव्यूज यस यस। कि टू व्हीलर सेगमेंट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू ग्रो नाउ, हीरो विल बी मोस्ट इम्पैक्टेड। तो अभी बात करने तो किसकी टीवीएस की बात करते हैं या बजाज ऑटो की बात हाँ करते हैं, ऐसा है सर। यस। आई थिंक हीरो शुड बी लुक्ड एट, शुड बी लुक केयरफुली। ऐसा नहीं बोलना है कि सेल करना है, हीरो शुड बी लुक्ड एट केयरफुली बिकॉज दैट इज द मोस्ट इम्पैक्टेड वन। You यस have to see how the price hike will impact. So sir from FY26 अभी कब आने वाला है, इसका डेट है क्या? नहीं, बट मैंने पढ़ा है 1 जनवरी है, रिपोर्ट सजेस्ट डिफर। आई थिंक उन लोगों ने चेंज किया है। हाँ डेट अप्रैल होता है बीच वाला यूजुअली। है ना, बीच वाला पैराग्राफ है ना उधर, 1 जनवरी 2026 था उधर है। राइट राइट राइट। यहाँ पे ऊपर जाओ एक, डिस्पाइट, देखो देखो थोड़ा लेफ्ट, रिपोर्ट सजेस्ट द हाँ सेंटर इज लाइकली टू डिफर द January 1 डेडलाइन, उसके ऊपर January 1 डेडलाइन। हाँ एक्चुअली मैंने पढ़ा था 1 जनवरी ही था, बट अभी उन लोगों ने डिफर हाँ किया है। प्रेफर किया ओके अप्रैल तक करते हैं अभी, ये है ना बजट है ना अभी हम्म, नेक्स्ट मंथ। वो डिफर हो गया, बट 1 जनवरी था। बट एबीएस अच्छा है एक्चुअली, मतलब इट्स गुड सेफ्टी हाँ बट के वो लिए। प्राइस विल इंक्रीज द प्राइस ना, प्रॉब्लम है वही एक डाउट है मतलब बिकॉज ये। दैट इज अ वेरी प्राइस सेंसिटिव मार्केट। मतलब वहाँ पे एक एक यस हजार का भी फर्क में ना, बिकॉज द पीपल इन दैट कैटेगरी फिर ना 1,000 इज 5,000 इज अ बिग अमाउंट। यस यस यस, बहुत सेंसिटिव है। यस सर एक चीज वो मेरे को वो रिपोर्ट भेज सकते हो क्या आप? कौन सा? दिसंबर या कोई वो रिपोर्ट आपने बोला था ना लास्ट क्लास में कि आप भेजोगे, बट आपने मैंने भेजा? इसमें डाला है ना वो EM15 में कोर्स मटेरियल में आई थिंक ये सैमी का डाला मैंने। अच्छा वो ऑटो का ना मैं डालता हूँ एक सेकंड यहाँ पे डालता हूँ। मतलब मेरे को वो वाला मिला, मैंने आपको ऑटो रिपोर्ट भेजा था लास्ट टाइम, तो मेरा ये बहुत खराब था, क्या बोलते हैं उसको, फॉर्मेटिंग प्रेजेंटेशन खराब था, हाँ हाँ प्रेजेंटेशन खराब था, तो इसलिए आपने हाँ। बोला था कि आप अबुरुद्दीन या वो है उसका आप अच्छा भेजोगे अब्दुल का ना, तो। हाँ एक सेकंड में डाल के रखता है, एक सेकंड सो ये आपके का मैंने ग्रुप में हाँ EM15 में मैंने भेजा था आई थिंक। या किया अपलोड मैंने कोर्स मटेरियल में ही। क्या नाम से? तो मैंने ना एक्चुअली इधर भी किया था एक अब्दुल ये रहा ऑटोमोबाइल हाँ हाँ। आप ऑटो ठीक है, मैं देख लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ। ऑटो सेक्टर रिपोर्ट ही करता हूँ। ये मैंने एक्चुअली इसमें डाला था ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में डाला था इनफैक्ट। वहां भी देखा था इसलिए मैंने, इसलिए यहाँ आशुतोष पे का नहीं था आया। ठीक है नहीं ठीक है क्या गलती ये से वाला। डाल दिया मैंने कोर्स मटेरियल्स में डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, मैं देख लूंगा। Okay. Okay, guys. Sorry, those who are not. I have to leave actually now. We'll take your news today. Nivedita, you can talk about your news again of that two-wheeler, four-wheeler again. That today you are supposed to tell that news. You can tell it tomorrow as well because Ankita has not told it in a proper way. You can tell it in a proper way. Okay. Yes. Okay. Okay. Okay, guys. Thank you. Sorry for the delay. आज वो presentation था तो it took time. Will you can present your news tomorrow as well. No issues in that. But कल भी एक नया न्यूज लिखना। ऐसा नहीं है कि कल का प्रेजेंट तो आज कुछ लिखना नहीं है। Okay. Okay, guys. Thank you. Have a nice day. See you थैंक यू tomorrow, सर। same time. You too, sir. Bye. Thank you. Bye.